آج ہم کلام کی روشنی میں اپنے لیے کچھ سیکھیں گے، روحانی غذا، اور ایک آیت میں پڑھوں گا اور اس کے روشنی میں ہم آج کی روحانی غذا سیکھیں گے۔ رومیو 4 باب اس کی 25 آیت، رومیو 4 باب اس کی 25 آیت میں اس طرح لکھا ہوا ہے، بلکہ 24 آیتیں، بلکہ ہمارے لیے بھی جن کے لیے ایمان راست بازی گنا جائے گا، اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ اس آیت کو میں کئی بار پڑھوں گا میسیج کے دوران، اس کو آخر میں آپ کو یاد ہو جانا چاہیے آیت۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات، ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیا باتیں ہیں؟ میں اس کو بتاتا ہوں۔ جب بھی خدا کا کلام بانٹا جاتا ہے نا، تو دنیا کا انچارج کون ہے؟ میں خود جواب دوں گا، شیطان۔ وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ جب ابھی کلام سے پہلے دعا کی کہ میں سننے والے کان نصیحت کر اور بندے کو بولنے والا منہ نہ کر، دھیان سے سنیں۔ یہ دنیاوی باتیں، خیالات، یہ ساتھ چلتے ہیں، یہ ایک حصہ ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، دنیا سے باہر نہیں۔ بطخ جو ہے وہ پانی میں رہتی ہے، وہ مگر پانی کے اثر کو قبول نہیں کرتی۔ ہم دنیا میں ہیں، دنیا کے اثر کو قبول نہیں کرتے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ تو پہلی بات، ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا۔ ہم شروع سے گناہ گار ہیں۔ ہمارے بدن جو ہے وہ گناہ میں بسے ہوئے ہیں۔ بڑی نوع انسان جب سے پیدا ہوا، وراثت میں کچھ گناہ ملے، کچھ ہم اپنے گناہ کرتے ہیں، ہاں جی، تو گناہ گار ہے۔ اور سب کو اس بات کا پتہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بالکل میں ٹھیک ہوں۔ ایک قاتل تھا، اس نے 9 قتل کیے۔ جب اسے پوچھا گیا بھی تو نے تو قتل کیا ہے، کہتے نہیں میں نے تو کوئی بھی قتل نہیں کیا۔ وہ حالات ہی ایسے ہوتے مجھے قتل کرنا تھا۔ اپنے آپ کو کوئی سمجھتا گناہ گار نہیں ہے۔ مگر پولس کیا کہتا ہے 7 باب اس کی 24 آیت میں، رومیو 7 باب اس کی 24 آیت، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ پولس کو احساس ہو گیا کہ میں گناہ گار ہوں، اور پھر وہ خدا کے سامنے کہتا ہے ہائے میں کیسے کمبخت آدمی ہوں، مجھے اس گناہ کے بدن سے کون چھڑائے گا۔ ہمیں بھی اس بات کو توفیق عنایت کرے کہ ہم سوچیں ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو خود نہیں بچا سکتے۔ اگر ہم سوچیں کہ ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اسے خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، نہ اس کے لیے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ چاہیے۔ یہ بات جو ہے کہ جی میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، غلطی کی ہے خیر ہے، نقصان کیا ہے خیر ہے، چوری کیا ہے خیر ہے، نہ، ہمارے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی شخص چاہیے۔ اور وہ شخص کون ہے؟ اپنے دل میں جو آپ دیں، یہ ہلکا اونچا بھی کہہ سکتے ہیں، یسوع مسیح۔ یسوع مسیح کون ہے؟ کامل انسان اور کامل خدا۔ صرف وہ شخصیت ہے دنیا میں جو ایک ہی وقت میں انسان ہے اور ایک ہی وقت پہ خدا ہے، اور کوئی نہیں۔ یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا ہے،
और वो दुनिया में काहे के लिए आया? हमारे बचाने के लिए, वैसे नहीं आया। उसको पता था कि ये लोग गुनाहगार हैं। आपको पता है या नहीं पता है? वही पता होना चाहिए। हमने सबने गुनाह किया। पौलुस इतना बड़ा रसूल है, वो कहता है आए मैं कैसा कम अक्सर। काश खुदा में तौफीक इनायत करे कि इस बात को सीखें कि हम कमज़ोर हैं, लाचार हैं। आप बीमार हो जाते हैं अक्सर औकात, तो डॉक्टर के पास जाते हैं या दवाइयाँ खाते हैं, पता लगता है बीमार है ना, जिस्मानी कमज़ोरी है, उसका इलाज करते हैं। अगर हम बीमार नहीं हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। तो रूहानी तौर पर भी हम गुनाह करते हैं। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। कैसे पता लगेगा हम गुनाहगार हैं? आपने देखा होगा कमरे में रात के वक्त अगर अंधेरा हो या इधर अंधेरा हो तो कुछ नज़र नहीं आता है। अगर रोशनी हो तो बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, मक्खियाँ नज़र आती हैं, गंद नज़र आता है। अंधेरे में सब चीज़ ठीक लगती है। हमारे अंदर अगर अंधेरा होगा तो सब कुछ ठीक है, कोई गुनाह नहीं। अगर हमारे अंदर रोशनी आएगी, यीशु मसीह के वसीला से रोशनी आएगी, पाक रूह के वसीला से रोशनी आएगी, फिर हमें गुनाह का एहसास होगा। हाय मैं कैसे कम वक्त आदमी हूँ। और जब पता लग जाएगा तो यीशु मसीह का पता लगेगा। यीशु मसीह रजा कराना वॉलंटरली इस दुनिया में आया मेरे गुनाहों की, आपके गुनाहों की खातिर। और ये वैसे नहीं आ गया। पुराने आयतनामे में नबियों की बहुत सी पेशन गोइयाँ थी और उन पेशन गोइयों का पूरा होना जरूरी था। उन पेशन गोइयों के आने की वजह से बात पूरी हो गई। हम अक्सर कहते हैं कि भी हल्की रोशनी नजर आती है, सूरज आ जाएगा, एडवांस पेशन गोई कर लेते हैं। जिस हल्की है ना, कई लोग एडवांस करते हैं गहरी पेशन गोई। बाइबल एक ऐसी किताब है, ये इसमें 1/3 हिस्सा नबूवती है, पेशन गोई है। उसको समझने के लिए क्या है, बाइबल को कैसे पढ़ेंगे? कुछ लोग करते हैं जी मुनाजरा करने फलानी चीज़ है, ये लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। इसको समझने के लिए जिसने लिखा है ना, उसी का मदद लें। लूका के इंजील के आखिरी बाब में लिखा हुआ है कि उसने रसूलों के ज़हन खोल ले ताकि किताब को समझ सके। कलाम को समझने के लिए हम आगे ना चले जाए, अपने रस्ते पे रहना चाहिए। पेशन गोइयाँ थी और ये पेशन गोइयाँ पूरी होनी चाहिए। नबूवती एडवांस उन्होंने पेशन गोई कर दी। तो यीशु मसीह आएगा, दुनिया में रहेगा और मेरे गुनाहों की खातिर, आपके गुनाहों की खातिर रजा कराना मसलूब होगा। यीशु ने कोड़े खाए, मार खाई, बहुत से किया ताकि हम बच जाए। रोमियो 5 बाब उसकी 7 आयत में लिखा हुआ है। रोमियो 5 बाब उसकी 7 आयत में किसी रास्तबाज की खातिर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे देने की जरूरत करे। बड़े नेक है, शायद बात आया कि जी फलानी खातिर मैं मरदा पिया, मगर खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगारी थे तो मसीह हमारी खातिर मसलूब हुआ। सिर्फ और सिर्फ यीशु हमारे गुनाह की शिफा दे सकते हैं। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया। खुदा को कितना हमसे प्यार है। आप वालिदैन हैं, अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे आपस में बहन भाइयों को प्यार करते हैं। खुदा हमारा बाप है, रूहानी बाप। खुदा हमसे प्यार करता है और प्यार का इजहार कैसे किया? उसने अपने बेटे को बेटा यीशु को भेजा ताकि मेरी खातिर और आपके गुनाहों की खातिर मसलूब हो जाए। आपका बच्चे जो वालिदैन जानते हैं बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानी करते हैं तो बच्चे खुश रहें। खुदा जो हमारा रूहानी बाप है उसको ख्याल है कि ये गुनाहगार इंसान है, इनको बचाने के लिए कोई ना कोई वसीला चाहिए। आपको इन बातें जितनी मैंने बातें की, इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम सब गुनाहगार हैं। ये कोई नहीं कहते ऐसे ठीक ठाक है। कौन कहेगा ठीक ठाक है? दुनिया के जो इंचार्ज है ना शैतान, वो आपके ज़हन में रखेगा। खा पीते खुश रहे, कोई मसला नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, शैतान की तरफ से।
मगर जब हमें एहसास होगा, हमारे अंदर रोशनी आएगी, हमें एहसास होगा कि हम कमज़ोर इंसान हैं, गुनाह करते हैं, और इस गुनाह का वसीला जो है सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, कामिल खुदा और कामिल इंसान, यीशु मसीह, और कोई नहीं, कोई नबी नहीं, कोई कुछ नहीं। इसका दूसरा हिस्सा, वो हमको रास बाज ठहराने के लिए जलाया गया, हमको रास बाज ठहराने के लिए जलाया गया। हमें मालूम है कि हम सब ने एक न दिन मरना है, किसी ने जल्दी मर जाना, किसी ने बाद में मरना, सबको नहीं मरना, पक्का किसी ने नहीं रहना। सबसे कहते हैं बूढ़ा होंगे तो मर जाएंगे, बाद तो आपने पढ़ा होगा छोटी उम्र ही बंदा चला जाता है, और आपने कभी सोचा कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे? ये तो आपको अंदाजा तो है ना। मरने के बाद सिर्फ दो जगह है, या जन्नत या दोज़ख, आम अल्फाज में। बाइबल के अल्फाज में बात थोड़ी बदल जाती है। आपने कभी सोचा है कि हमने जन्नत में कैसे जाना है और दोज़ख में कैसे जाना है? बाइबल के अल्फाज में थोड़ा सी टेक्निकल लफ्ज़ बदल जाएगा। मरने के बाद अगर हम गुनाहगार हैं, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात खुदावंद कबूल नहीं किया, तो कहाँ जाएंगे? ये तो पता लग गया ना। हाँ, बच्ची ने जवाब ठीक दिया, दोज़ख में। और अगर नेकी काम करेंगे, रोजे रखेंगे, दुआएं करें, नमाजें पढ़ेंगे, तो फिर भी मरने के बाद जन्नत में नहीं जा सकते। उसके लिए जरूरी है कि यीशु मसीह को माने। सिर्फ और सिर्फ एक ही वसीला है, यीशु मसीह, सलीब के रास्ते, जो मेरे गुनाहों की खातिर मसलूब हो। वही सोचे जी दुआ करांगे, नमाजा पढ़ांगे, फलाना काम जाएंगे, फलानी जगह जावांगे, पीरा फकीरा को जावांगे, शायद बच जाइए ना। ये झूठे बहाने हैं, ये शैतान का एक हरबा है। शैतान इतना बड़ा है कि अक्सर औकात हम इबादत करते हैं, बड़ी सोने आराम में बातें करने, वही बातों में तो अपनी जगह है, बातों में तो अपनी जगह है। ये भी शैतान का हरबा है कि मज़ा तो नहीं बचा लेगा ना। बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही वसीला है, यीशु मसीह। उसी को जब तक कबूल नहीं करेंगे, हम जन्नत में नहीं जा सकते। मैं उसका लफ्ज़ बोलूँगा भाई बहनों, याद रहे कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात खुदावंद को एलानिया, फिर हम जन्नत में जाएंगे। अब बाइबल में क्या लफ्ज़ है उसके लिए? फिरदौस। और सबसे पहला शख्स कौन गया? मर्द, डाकू। डाकू था, पूरी उम्र गुनाह किए, मगर जब उसने यीशु को अपना मान लिया ईमान से कि यीशु मसीह मेरी खातिर मुस्लिम हो रहा है, यीशु ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ फिरदौस है। फिरदौस ऐसी जगह है जिसको हम जन्नत कहते हैं, कि जहाँ हमेशा की जिंदगी। ये तो आधी जिंदगी है, मगर वहाँ हमेशा की जिंदगी मिलेगी। और उसके लिए शर्त और सिर्फ एक ही शर्त है, छोटी सी शर्त है। और जो शैतान चाहता है कि वो छोटी बात को ना करे। देखो कितना शैतान ऊंची चीज़ है, दुनिया का इंचार्ज है कि दुआ करो, नमाजा करो, सब कुछ लग जाएगा ना। एक छोटी सी बात करनी है, एलानिया इकरार करना है, ईमान से देखना है कि यीशु मसीह मेरी खातिर, मेरे गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ और फिर जिंदा हो गया, ताकि मेरे गुनाहों का कुफारा हो जाए। यीशु मसीह को एलानिया शख्सी तौर पर अपना खुदावंद और निजात देना कबूल, बस छोटी बात है, लंबा काम नहीं है। इस छोटी बात को देखने के लिए शैतान के अंदर ऐ काम ना करो, बाकी सारे काम करो। आप जाते हैं ब्याह शादियों में जाते हैं, और जाते हैं महफिल में जाते हैं, कोई रुकावट नहीं है। हाँ जी, बातें करते हुए रुकावट नहीं। जब दुआ की तरफ आते हैं, जब कलाम सुनते हैं, तो शैतान क्या रुकावट डाल देता है? क्या रुकावट डालता है? बज़ाहिर हमारा ज़हन आगे पीछे से चला जाता है, ताकि कलाम पर गौर ना कर सके। तभी खुदा के बंदे ने दुआ की, जब कलाम सुने, सुनने वाले कान नायत कर, ताकि समझने वाला ज़हन बन, ताकि हम सुने। छोटी सी बात, वो मेरी खातिर मसलूब हुआ। किस तरीके से हम देखते हैं कि जो शरीयत का तकाजा जो है वो पूरा हो जाए। शरीयत क्या कहती है?
कानून है। कानून क्या कहता है? मूसा की शरीयत में लिखा हुआ है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। कानून है, कानून तो मानना ही है। आप सड़क पे जाएं, गलत तरीके से करेंगे, ट्रैफिक का कानून बनेगा तो पुलिस पकड़ लेगी। घर से बाहर जा रहे हैं, कानून है कि जब पानी आ रहा है तो ध्यान ना चलना है। मसीहत है कैसे मजहब है कि जो ध्यान ज़हन भी इस्तेमाल करना होता है ना। तो कानून ये कहता है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। हम सब ने गुनाह किया, हम सब ने मरना है। और जान के बदले जान, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। आगे दूसरा सा क्या कहता है कानून का कि जो जान और यीशु मेरी खातिर उसने अपनी जान दे दी। यीशु ने मेरी खातिर अपनी जान दे दी तो कादा पूरा हो गया शरीर का। जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। जान के बदले जान, मेरी जान के बदले यीशु ने अपनी जान दे दी। काश खुदा में तौफीक करे ईमान से उस बात को देखें कि यीशु मेरी खातिर मसलूब हुआ। किसी रासपात की खातिर भी शायद कोई मर जाए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। खुदा अपने मोहब्बत इस तरह जाहिर करता है कि यीशु मसीह मेरी खातिर मसलूब हो जाए। काश खुदा में तौफीक इनायत करे इस बात को समझने के लिए कि यीशु मसीह, हम ईमान की आंख से देखेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए सलीब पर बहा और तीसरे दिन मुर्दे में से जी उठा। एक बहुत शख्सियत। बाकी कब्रें उनकी है, यीशु मसीह की कब्र आज भी उधर मौजूद है, खुली कब्र, उसमें कोई नहीं। यीशु मसीह एक ऐसी तारीखी शख्सियत है, तारीखी तौर पर, साइंसी तौर पर, दुनियावी तौर पर, जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। अगर आप कहें जी आप बैठिए इधर, कोई बंदा कहे झूठा है, कोई देखें सही, खुद देखें, साबित है, तस्वीरें बनाते हैं कि ये यहाँ बैठा हुआ है। तो आज भी वो कब्र खाली है और जिस जगह जैसे मुस्लिम हुआ था वो ही लोगों ने महफूज की हुई है और सब कुछ किया हुआ है। मगर हम आगे अपने टॉपिक से आगे पीछे ना हो जाए तो हम एक हवाला देखेंगे, आखिरी हवाला है पहला पत्रस, उसका 2 बाब उसकी 25 आयत, बल्कि 24 आयत है, 24 पहला पत्रस 2 बाब 24-25 आयत। वो आप हमारे गुनाहों के वो अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए और उसी के मार खाने से तुमको शिफा मिले। क्योंकि पहले तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब रूहों के गलाबान और नगेबान के पास फिर आ गए। उसी के मार खाने से तुम्हें शिफा मिली। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। काश खुदा हमें तौफीक इनायत करे, काश खुदा हमें तौफीक इनायत करे, इस बात को सीखें, ईमान से कबूल करें। क्या हमने सीखा? छोटी सी बात जो शैतान नहीं चाहता है कि ज़हन से, ईमान से यीशु मसीह को देखें और एलानिया बताएं कि यीशु मसीह मेरी खातिर मसलूब हुआ और मैं ईमान से उसको आज से शख्सी निजात देता और खुदा आमीन। जोरदार तालियां कलाम। तो